اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یزجرہ صراخ المستصرخین ولا یبرمہ الہاہ الملہین ولم تخفى علیہ المکنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات دائما قائما بالقسط والصلاة والسلام على من أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره وجاء بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیع بصیرا. صلوات بابا سے بولا. حضرات سامعین، سورہ نساء کی ایک آیت مجیدہ، اس کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ شروع ہے. ارشاد خداوندی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم یعظکم بہ، یہ وہ بہترین نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کرتا ہے. کان اللہ سمیع بصیرا، اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. عدل پہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں زور دیا کہ عدل بنیادی چیز ہے دین میں. اللہ نے فرمایا جب بھی تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اب دیکھیں عدل کو قرآن حکیم میں مختلف مقامات پہ مختلف طریقے سے خالق نے عدل کی اہمیت کو واضح کیا. دو آیتیں قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے لیے رسول ہے، ہر امت کے لیے رسول تھے. وَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ وَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ. اللہ نے کہا جب بھی رسول ان کے پاس آئے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انہوں نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا عدل کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور امتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا کیونکہ ہر امت کے رسول نے فیصلہ کیا عدل کے ساتھ. اور پھر سورہ حدید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. اللہ نے فرمایا میں نے رسول بھیجے ہیں بالبینات، ان کو کتابیں دے کر اور واضح معجزات دے کر بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہر رسول کے ساتھ میں نے کتاب بھی اتاری، میں نے میزان بھی اتارا. لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ رسول اس کتاب اور معجزات کے ذریعے اپنی امت کے لوگوں کو عدل پر قائم رکھیں. پتہ چلا
निज़ाम कायनात में अदल को नाफिज करने के लिए खालिक कायनात ने तमाम नबियों का जो सिलसिला है उसको शुरू किया, जिसका इख्तिताम सरकारे खत्मी मर्तबत की ज़ात पे हुआ। पता चला अल्लाह के निज़ाम का मकसद, हादियों के आने का मकसद निज़ाम अदल का कयाम था। घबरा तो नहीं गए सुनने वाले, तवज्जो है। नबी आए इसलिए ताकि अदल को कायम करें। और अदल क्या है? कल मैंने अमीर अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ा था। मेरे मौला से पूछा गया कि मौला ये अदल है क्या? तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया अदल ये है कि जो चीज जिस जगह के लायक हो उसे वहां रखना ये अदल है, और जो चीज जिस जगह के लायक ना हो उसे वहां रखना ये जुल्म है। अब आइए यहां से मैं आज की गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। देखें, इंसान की तख्लीक भी अदल पर है। अब थोड़ा थोड़ा अपने ज़हनों को, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, इनको मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा बेटा ज़हनों को बुलंद करना है ताकि मेरी गुफ्तगू के साथ साथ आप चल सके। एक एक लफ्ज पे तवज्जो। देखें, अल्लाह ने इंसान को खल्क किया, और तवज्जो मेरी तरफ मेरे भाई, अल्लाह ने इंसान को खल्क किया और इंसान की तख्लीक कैसे हुई? ताहिर भाई, कुरान ने बताया तख्लीक इंसान भी अदल पर है। आइए चलता हूं कुरान की तरफ, और ये अल्फाज है सूरह अल-इंफितार के। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल इंसानो, बस तवज्जो पूरी मेरी तरफ होनी चाहिए। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने अपने करीम परवरदिगार से गाफिल कर दिया? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने अपने करीम परवरदिगार से गाफिल कर दिया? कौन सा परवरदिगार? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुम्हें खल्क किया, वसव्वाका, फिर तुम्हारा तस्विया किया, फ़अदलका, और तुझे बनाया अदल के साथ, तुझे बनाया अदल के साथ, वफ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबाका, और फिर जिस सूरत में चाहा तुझको खल्क किया। पता चला इंसान की तख्लीक भी अदल पर है। इंसान की तख्लीक भी अदल पर है। बेटा, ये इंसान की तख्लीक अदल पे होना, इससे क्या मुराद? वो डेफिनेशन याद है ना? मौला ने फरमाया अदल क्या है कि जो चीज जिस जगह के लायक हो उसे वहां रखना, ये अदल है। तो इंसान की खिलकत में भी अदल है। मैंने आयत कुरान की पढ़ी, तो इंसान की तख्लीक कैसे अदल पर है? इसका मतलब ये है कि इंसान के हर उस्व को अल्लाह ने वहां रखा जहां रखने के लायक था। आंखें वहां रखी जहां रखने के लायक थी, कान वहां रखे जहां रखने के लायक थे, नाक वहां रखी जहां रखने के लायक थी, जुबान को वहां रखा जहां रखने के लायक थी। पता चला तख्लीके इंसान भी अदल पर है। अरे अगर अदल ना हो तो इंसान की तख्लीक नाकिस, तो जिस मजहब में अदल ना हो वो मजहब नाकिस। मौला सलामत रखे आपको। मेरे साथ साथ चल रहे हैं मेरे दोस्त। अगर इंसान की तख्लीक में अदल ना हो तो तख्लीक नाकिस, तो फिर अगर किसी मजहब में अदल ना हो तो फिर मजहब कामिल कैसे? अब यही फर्क है कि हमारे असूल दीन में मैंने कल बताया था अदल शामिल, हमारे असूल दीन में अदल शामिल। अब अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने इंसान के हर उज़्व को वहां रखा जहां रखने के लायक था। भाई घबरा तो नहीं है मेरे सुनने वाले, परेशान तो नहीं है? समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू की? मैं बिल्कुल आसान करके पढ़ रहा हूं ताकि आप मेरे साथ साथ चले। पता चला तख्लीके इंसान में अल्लाह ने इंसान को जो खल्क किया तो इंसान की खिलकत में भी अदल को रखा, क्योंकि इंसान का हर उज़्व वहां रखा जहां रखने के लायक था। सर वहां जहां रखने के लायक है,
नाक वहां जहां रखने के लायक है, आंखें वहां जहां रखने के लायक है। अब देखें, रसूल की बड़ी मशहूर हदीस है और तमाम मुसलमान भाइयों ने इस हदीस को कोट किया। रसूल ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलतिन रासे मिनल बदन। तवज्जो, तर्जुमा करने से पहले तवज्जो चाह रहा हूं आपकी। रसूल ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलतिन रासे मिनल बदन। ए अली, आपका मेरे साथ वही मुकाम है जो जिस्म पर सर का होता है। बड़ा जुमला था मेरे सुनने वाले, बड़ा जुमला था, मैं समझा नहीं सका। फिर सुने, जो अभी तक समझ नहीं सके उनके लिए रिपीट करना चाहता हूं। ताहिर भाई, रसूल ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलतिन रास मिनल बदन। ए अली, आपका मेरे साथ वही ताल्लुक है, आपका मेरे साथ वही मुकाम है जो जिस्म के साथ सर का होता है। मेरे दोस्तों, मुसलमान भाइयों, किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं, हमसे लड़ने की जरूरत नहीं। हम करें क्या, हम मजबूर हैं। मेरे मौला अली को जहां भी रखा है वहां अल्लाह ने रखा है। आपने तवज्जो फरमाई कि रसूल ने क्या फरमाया, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलतिन रास मिनल बदन। जितने नौजवान हैं, आपकी तवज्जो चाहता हूं बेटा, समझने की कोशिश करनी है। रसूल ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलतिन रास मिनल बदन। ए अली, आपका मेरे साथ वही ताल्लुक है, आपका मेरे साथ वही मुकाम है। या अली, आपका मेरे साथ वही मुकाम है जो जिस्म का सर के साथ होता है। नहीं समझ आई? पता चला जिस्म और है, सर और है, लेकिन जिस्म और सर का ताल्लुक क्या है? ये हाथ जिस्म है, ये बाजू जिस्म है। अगर हाथ अलग हो जाए, कट जाए, तो फिर भी इंसान जिंदा रह सकता है। कान कट जाए तो इंसान फिर भी जिंदा रह सकता है। आंख निकल जाए तो इंसान फिर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर सर कट जाए, तो जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म। मेरे सुनने वाले, रसूल ने कहा, या अली, आपका मेरे साथ वही मुकाम है जो जिस्म के साथ सर का होता है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा न रहे तो जिंदगी रह सकती है, लेकिन सर न रहे तो जिंदगी खत्म। रसूल ने कहा, ऐ सुनने वाले, ऐ मेरी उम्मत, याद रख, मैं हूं जिस्म, अली है सर। मैं हूं जिस्म, अली है सर। अगर अली मुझसे अलग करोगे तो ना रिसालत बचेगी, ना तौहीद बचेगी। मौला आपको सलामत रखे। अगर अली को रसूल से अलग करो तो ना रिसालत बचती है, ना तौहीद बचती है। पता चला, अगर तुम्हें बचानी है तौहीद, अगर तुम्हें बचानी है रिसालत, तो तुम्हें अली वलीउल्लाह कहना पड़ेगा। तवज्जो है मोहतरम? रसूल ने फरमाया, या अली, आपका मेरे साथ वो ताल्लुक है जो सर का जिस्म के साथ। अब सर ना हो तो जिस्म खत्म, सर ना हो तो जिस्म खत्म। भाई घबरा तो नहीं है मेरे सुनने वाले? तवज्जो है? अब देखें इस रसूल के फरमान में क्या हिकमत है। रसूल ने फरमाया, अली है मेरा सर, मैं हूं जिस्म। अब खवासे खमसा, 5 है खवासे खमसा: देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, चखने की ताकत, छू कर महसूस करने की ताकत। इन 5 का ताल्लुक अकल से। अकल कहां है? सर में। रसूल ने कहा, ऐ अली, आप है मेरा सर। पता चला, अली नाम है अकले रसूल का। सलामत रखिए अली अली करने वालों को। पता चला, अली नाम है अकले रसूल का।
अली नाम है अकल रिसालत का। अब मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। अगर किसी को आप कहो या अली मदद, तो अगर उसका चेहरा बिगड़ जाए तो लड़ने की जरूरत नहीं। समझना ये वही है जो रसूल को अली से अलग कर रहा है। अली है सर, रसूल है जिस्म। जो सर को जिस्म से अलग करे वो कातिल होता है। तो जो अली को रसूल से अलग करे या अली के नाम से चेहरा बिगड़ जाए, समझना वो बदबख्त रसूल का कातिल है। मौला सलामत रखे। तवज्जो है जरा मोहतरम। अल्लाह ने अली को जहां भी रखा, अल्लाह ने रखा। अली को अल्लाह ने जहां भी रखा, अल्लाह ने रखा। अब अगर किसी को अली से चिढ़ है तो वो फतवा लगाए खुदा पर। नहीं, आइए चलता हूं फिर कुरान की तरफ, जहां तक आवाज जा रही है। ये अल्फाज है कुरान के। देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अअलमु हैसु यजअल रिसालतहु। अल्लाह जानता है कि वो अपनी रिसालत को कहां रखे। अल्लाह जानता है कि वो रिसालत को कहां रखे। अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो रिसालत को कहां रखे। देखो मेरे दोस्तों, एक होता है ज़र्फ, एक होता है मज़रूफ। ज़र्फ के बगैर मज़रूफ मुमकिन नहीं। मैं बच्चों को समझाने के लिए, ये देखो, ये मेरे सर पे है टोपी, ये मैंने अपना रुमाल लिया, मैंने टोपी के अंदर रखा। अब टोपी है ज़र्फ, रुमाल है मज़रूफ। टोपी है ज़र्फ, रुमाल है मज़रूफ। अगर किसी को रुमाल चाहिए तो उसे ज़र्फ के पास आना पड़ेगा। मैंने बड़ा जुमला कहा अपने सुनने वालों के लिए। अब अगर कोई कहे मुझे इस रुमाल की जरूरत है, तो रुमाल तो है टोपी में, अब उसे आना पड़ेगा टोपी के पास। लेकिन अगर कोई कहे टोपी का नाम ना लो, ये बिद्दत है, तो मरता मर जाएगा, रुमाल नहीं मिलेगा। समझ आ रही है मेरे दोस्तों। और दूसरी बात, अगर मज़रूफ पाक हो तो जरूरी है कि उसका ज़र्फ भी पाक हो, क्योंकि नापाक जगह पे पाक को रखा नहीं जाता। मैं समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, सबके घर में माशाल्लाह कुरान है। सारे बताओ मुझे, आप कुरान को कहां रखते हो? ऊंची जगह पर, पाक जगह पर, ऊंची जगह पर वहां रखते हो कुरान। क्यों? इसलिए कि कुरान है मुकद्दस, कुरान है ताहिर, कुरान है पाक। तो पाक कुरान को रखने के लिए तुम जगह भी वो ढूंढते हो जो पाक हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। अरे तुम कुरान को रखो तो ऐसी जगह पे, अब मैं जुमला दे रहा हूं, अगर तवज्जो मेरी तरफ है, जितने बाहर बैठे हैं मेरे दोस्त, अरे अगर तुम कुरान को रखो तो ऐसी जगह पे रखते हो जो पाक हो। अगर तुम रखो, तुम, कोई मुल्ला नहीं, कोई मौलवी नहीं, अगर तुम रखो, एक आम बंदा भी अगर कुरान को रखे तो तुम ढूंढते हो ऐसी जगह जो पाक हो, जो इज्जत वाली हो, जो ताहिर हो। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत को कहां रखे। मुसलमानों गैरत करो, तुम कुरान को रखो तो ऐसी जगह ढूंढते हो जो पाक हो। तो जिस अबू तालिब की गोद में अल्लाह ने मोहम्मद को रखा होगा, वो अबू तालिब कितना पाक होगा। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह ने कहा जिस गोद में, जिस अबू तालिब की गोद में अल्लाह ने अपने रसूल को रखा, वो अबू तालिब कितना पाक होगा। अरे तुम्हें कुरान की इज्जत समझ में आती है? तुम्हें वारिसाने कुरान की इज्जत समझ में नहीं आती? अब आइए
मैं फिर चलता हूं कुरान की तरफ और ये अल्फाज है कुरान के। देखें अल्लाह ने वली की निशानियां क्या बताई। जहां नौजवानों पूरी तवज्जो मैं आपके लिए ये जुमले कह रहा हूं और एक एक बात मैं कुरान से कर रहा हूं ताकि किसी को इतराज करने का मौका ना मिले। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में व इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, अगर किसी बंदे पर कर्जा हो, कर्जा हो, कर्जा हो, अगर किसी बंदे पर कर्जा हो तो अगर वो बंदा सईफन औ ज़ईफन और ला यस्तातियु अन युमिल्ला हुआ, अल्लाह ने कहा जिस बंदे पर कर्जा हो उसे चाहिए कि वो लिखवाए। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, वो लिखवाए। फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, अगर जिसके पास कर्जा है सफियन औ ज़ईफन औ ला यस्तातियु अन युमिल्ला हुआ फयुमलिल वलियुहु बिल अदल। तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह ने कहा जिस पे कर्जा हो अगर वो खुद अगर वो सफियन, अगर वो कमजोर है, अगर वो बेअकल है, अगर वो जाहिल है, तवज्जो चाह रहा हूं, जिस पर कर्जा है अगर वो जाहिल है औ ज़ईफन या अगर वो कमजोर है औ ला यस्ततीयु अन युमिल्ला हुआ या वो लिखने की ताकत नहीं रखता तो फिर वो क्या करे। पूरी तवज्जो, वो क्या करे। फयुमलिलहु वलियुहु बिल अदल, तो उसे चाहिए कि वो अपना एक वली मुकर्रर करे जो उस बंदे की तरफ से वो लिखे अदल के साथ। तर्जुमा समझ में आ गया। एक दफा फिर सुने, अल्लाह ने फरमाया जिस बंदे पे कर्ज है, जिसने कर्जा लिया है, अव्वल तो उसे चाहिए कि वो खुद तहरीर करे, कागज पर लिखवाए। लेकिन अगर वो खुद जाहिल है या कमजोर है या उसे लिखना नहीं आता, तीन ऐब बताए अल्लाह ने कि अगर वो खुद जाहिल है, अगर उसे खुद लिखना नहीं आता, अगर वो खुद कमजोर है, ये तीन ऐब अल्लाह ने बताए, तो फिर वो क्या करे। फयुमलिलहु वलियुहु बिल अदल, तो फिर उसका वली लिखे अदल के साथ। तो मानना पड़ेगा अल्लाह ये कह रहा है कि अगर वो खुद कमजोर है, जो खुद लिख नहीं सकता, वो खुद जाहिल है, तो वली मुकर्रर करे। तो पता चला वली में ये तीन खामियां नहीं होनी चाहिए। वली ऐसा होना चाहिए जो कमजोर भी ना हो, जो जाहिल भी ना हो। मैंने बड़ा जुमला कह दिया मेरे सुनने वाले, कुरान क्या कह रहा है। अब है किसी मुसलमान के पास जवाब। अरे अगर कोई आम इंसान अपना वली बनाए, नौजवानों मेरे बच्चों सर उठा के मेरा जुमला समझ रहे, मेरा जुमला जाया नहीं करना। अगर हम जैसा, तुम जैसा आम इंसान वली बनाए तो उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। वो वली आदिल भी हो, वो वली जाहिल ना हो, आलिम हो। तो बताओ जिसको अल्लाह वली बनाए वो कितना आदिल होगा। भाई अगर आम इंसान के बनाए हुए वली में ये तीन चार शर्तें होनी चाहिए कि वो कमजोर भी ना हो, वो जाहिल भी ना हो, वो लिखना भी जानता हो, और चौथी चीज वो आदिल हो, वो अदल के साथ लिखे। तो अगर आम बंदे के वली में ये चार खूबियां जरूरी है तो मुसलमानों जिसको मर्जी है वली बनाओ, जिसको मर्जी है वली मानो, लेकिन देखो वो बुज़दिल तो नहीं है, वो जाहिल तो नहीं है। नहीं मुझे मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आया। आगे चलता फिर कुरान की तरफ जहां तक आवाज जाती है। आदिल, अदल हो, उसमें अदल हो, उसमें अदल हो, उसमें अदल हो। भाई अब यहां से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं और कायनात की कीमत का जुमला मैं कहने लगा हूं आपके यहाँ पे मेरे जो सामीन हैं। पूरी तवज्जो जहां तक भाई जितने मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान तशरीफ फरमा है, समझने की कोशिश कर लिया मैं क्या कह रहा हूं। चाहे किसी का ताल्लुक अकीदा अहले सुन्नत से है या अहले तशी से, जो यहां आ जाता है वो हुसैनी है।
मौला आपकी जिंदगी दराज करें, समझने की कोशिश करें हुसैन है क्या कुरान में। अब अल्लाह ने कहा जो वली बने उसमें अदल होना चाहिए, अदल। अब आइए चलता हूं कुरान की तरफ, और ये अल्फाज है सूरह राअत के। इस बात को ज़हन में रखना है कि जिसको हम वली बनाए उसमें अदल होना चाहिए, वो आदिल होना चाहिए। तो जिसको अल्लाह अपना वली बनाए वो कितना बड़ा आदिल हो। अब इस जुमले आयत पढ़ के जब मैं नतीजा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कितनी कितनी मोहब्बत अली दिलों में मौजूद है, क्योंकि मैं तर्जुमा करके फैसला क़यामत खेस देने लगा हूं। अब ये देखो, आप लोग अपने ये शिया कौम अपने खुतबा का और ज़ाकिरीन का इम्तिहान लेती है ना, आज मैं आपका इम्तिहान लेने लगा। तवज्जो चाह रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज आ रही है। अल्लाह ने कहा जो तुम वली बनाओ वो अनपढ़ ना हो, वो जाहिल ना हो, वो कमजोर ना हो, वो आदिल हो। तो हमारा बनाया हुआ वली आदिल होना जरूरी है। तो जिसको अल्लाह वली बनाए वो कितना बड़ा आदिल हो, आइए कुरान से पूछते हैं। और ये अल्फाज हैं सूरह अर्राअत के। अल्लाह ने अपने रसूल से मुखातिब होके इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, मेरे भाई आपको नींद तो नहीं आ रही, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज करे। सूरह रात में आइए चलते हैं कुरान की तरफ। अल्लाह ने कुरान में अपने रसूल से मुखातिब इस आयत में रसूल से खिताब करके अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कुल ए मेरे रसूल वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, ए रसूल ये जो काफिर हैं ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। फ़क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। बच्चों इस आयत को याद रखना है, सूरह रात की आखिरी आयत, आखिरी आयत में से मैं पढ़ रहा हूँ सूरह रात की। अल्लाह ने रसूल से क्या कहा, ए रसूल वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, ए रसूल ये काफिर कहते हैं, काफिर कि आप अल्लाह के रसूल नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुल आप इन काफिरों से कह दें, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अल्लाह ने कहा आप इन काफिरों से कह दें कि मेरी रिसालत का एक गवाह अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास तमाम किताबों का इल्म है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो मैं नाम नहीं लूंगा, आयत में भी किसी का नाम नहीं, लेकिन मुसलमान भाई इतना तो मानना पड़ेगा, इस आयत ने कहा कि रसूल की रिसालत का एक गवाह अल्लाह है, दूसरा वो जिसके पास तमाम किताबों का इल्म है। ये कुरान ने कहा, कुरान ने। अब नाम किसी का भी नहीं, मैं भी नाम नहीं लेता, अल्लाह निशानियां बताता है। अल्लाह का तरीका ही नहीं कि अल्लाह किसी का नाम ले, अल्लाह निशानियां बताता है। या अल्लाह मसला आसान हो जाता अगर आप नाम लिख देते तो झगड़ा खत्म हो जाता। नाम क्यों नहीं लिखा, निशानियां क्यों नहीं बताई? अल्लाह ने कहा कमर मेरी नजर है, मेरे इल्म में है, कयामत तक के आने वाले मुसलमान मेरी नजर है इनके दिलों पर। मुझे पता है कि लोग बनने के लिए जो वो नहीं है वो बनने के लिए नाम बदल के अपने नाम रखेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे, नाम बदला जा सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने नाम लिया ही नहीं किसी का, मैंने निशानियां बताई। निशानियां नहीं बदली जा सकती। तवज्जो चाह रहा हूं। अब मानना पड़ेगा कि अल्लाह के साथ रसूल की रिसालत का एक दूसरा गवाह है। निशानी क्या बताई? जिसके पास तमाम किताबों का इल्म है। अब जितने मेरे आप सुन रहे हैं मेरे भाई, मेरे मोहतरम, सुबह मुसलमान भाइयों के सर पे कुरान रखना, अदब से और एहतराम से हाथ बांध के कहना, बताओ तुम्हारी फिका में गवाही की शर्तें क्या है? भाई जहां तक मेरी आवाज आ रही है, हाथ बांध के मुसलमानों से कहो, बताओ
तुम जिस फिका के भी मानने वाले हो, चाहे हम्बली हो, चाहे मालिकी हो, चाहे शाफी हो, चाहे हनफी हो, जिस फिका से भी ताल्लुक है हम एहतराम करते हैं, लेकिन बताओ तुम्हारे फिका के इमाम ने गवाही की शर्तें क्या रखी है? तो वो कहेंगे कि गवाही के लिए जरूरी है कि जो गवाह हो वो आदिल हो। मैंने बड़ा जुमला कहा, लेकिन मैं फिर समझा नहीं सका, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर सुने, गवाह की शर्त है आदिल होना। तो अगर गवाह हो तो जरूरी है कि दोनों का अदल बराबर। और आपकी जिंदगी दराज करेगा। मेरे सामान्य नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। आयत ने क्या कहा? रिसालत के दो गवाह, एक अल्लाह, दूसरी वो हस्ती जिसके पास तमाम किताबों का इल्म है। ये दो गवाह हैं रसूल की रिसालत के, और गवाहों के लिए जरूरी कि दोनों का अदल बराबर। एक गवाह अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास तमाम किताबों का इल्म है। मैंने नाम नहीं लिया, ये नतीजा फैसला खुद करेगा कि ये दूसरा गवाह कौन है, क्योंकि हर फिका के इमाम ने लिखा कि दो गवाहों की शर्त ये है कि दोनों आदिल हो, दोनों का अदल बराबर हो। अल्लाह ने अपने साथ रसूल की रिसालत की गवाही में अपने साथ एक और को रखा। वो जो भी है तुम्हें इतना तो मानना पड़ेगा, वो जो भी है उसका अदल अल्लाह के अदल के बराबर, अल्लाह के अदल के बराबर, अल्लाह के अदल के बराबर, अल्लाह के अदल के बराबर। अगर उसका अदल अल्लाह के अदल के बराबर ना हो तो फिर गवाही बातिल। मानना तुम्हें पड़ेगा कि वो आदिल, वो गवाह ऐसा हो जिसका अदल अल्लाह के अदल के बराबर हो, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसका अदल अल्लाह के अदल के बराबर हो। नहीं, देखिए मैं समझाना चाहता हूं। ये तो बात तय हो गई कि रसूल की रिसालत की गवाही में अल्लाह के साथ जो दूसरा है वो ऐसा आदिल होगा, क्योंकि अल्लाह ने पहले खुद को गवाह बनाया। अब पहला गवाह है अल्लाह, दूसरा अल्लाह तो हो नहीं सकता। या तो अल्लाह कहता कि सिर्फ मैं गवाह हूं, कि अल्लाह अगर गवाह बने तो अल्लाह की गवाही थोड़ी है, कम है। नहीं, वो खालिक कायनात, वो खालिक अर्ज़ो समावात। तो अगर वो खुद कह देता कि मैं खुद गवाह हूं तो फिर भी बात तय थी, लेकिन अल्लाह ने खुद अपने साथ रसूल की रिसालत का ये दूसरा गवाह रखा। तो अगर अल्लाह ने रखा तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि उसका अदल ऐसा होना चाहिए जैसे अल्लाह का अदल। या मैं आसान करूं तो उसके हर हरकत से अल्लाह का अदल जाहिर हो। नहीं, अभी भी जहां पे मेरी रूह खड़ी है मैं आपको वहां लेके जाना चाहता हूं। ये अल्फाज हैं सवाइके मुहरिका के, मुसलमान भाइयों की बड़ी किताब अल्लामा हजर इब्न मक्की की लिखी हुई अस्सवाइके मुहरिका। अब इसमें ये रवायत है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, एक अरबी आया, उसके हाथ में अपना ऊंट था, आके रसूल के पास आया। तवज्जो चारों जहां तक आवाज आ रही है, रसूल के पास आया, या रसूल अल्लाह, मैं नया मुसलमान हुआ हूं और हूं बड़ा गरीब। असल भाई मैंने किस का हवाला दिया? सवाइके मुहरिका। किसकी लिखी हुई? अल्लामा हजर इब्ने मक्की की लिखी हुई। सवाइके मुहरिका में ये रवायत है, मुसलमानों की मशहूर किताब है। या रसूल अल्लाह, मैं नया मुसलमान हुआ हूं बड़ा गरीब, ये ऊंट बेचना चाहता हूं। रसूल ने कहा कितनी कीमत लोगे?
اس نے کہا 300 درہم لوں گا۔ رسول نے جیب سے پیسے نکالے، اس کے ہاتھ میں رکھے، اونٹ لے لیا۔ طاہر بھائی جیسے ہی رسول نے قیمت ادا کر کے اونٹ لیا، یہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے پیسے دیے ہی نہیں، گواہ پیش کرو۔ میں بڑا چھلا کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اس نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے تو پیسے دیے ہی نہیں، گواہ پیش کرو۔ رسول نے فرمایا میں نے تمہیں ابھی قیمت دی ہے۔ میں کہا رسول کو یہ کہتا ہے گواہ پیش کرو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دیکھ رہے تھے وہ اس جگہ پہ آئے، کیا ہوا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ رسول نے فرمایا اس عرابی نے کہا دیکھو یارو، رسول نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں اور رسول کہہ رہے ہیں میں نے پیسے دیے ہیں۔ اب یہ سارے بولے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے علی عزت کا واسطہ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، توجہ، یہ سارے کہہ رہے یا رسول اللہ گواہ تو دینا پڑے گا، یا رسول اللہ گواہ تو دینا پڑے گا۔ یہ آتے رہے، گواہیاں مانتے رہے، یا رسول چپ کر کے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی آئے۔ اب پہلے تو وہ شکایت کر رہا تھا عربی صحابہ کرام سے، جب علی آئے نا اب رسول نے شکایت کی علی سے، یا علی یا علی یا علی میں نے اس کو پیسے ادا کر دیے، یہ کہتا ہے گواہ پیش کرو۔ کچھ نہیں کہا علی نے، تلوار نکالی، اس کی گردن کاٹ کے پھینکی، اس کی گردن کٹ کے گرنا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بولے یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا؟ ایک مظلوم کو قتل کر دیا۔ رسول نے فرمایا خاموش، عمل علی حق العمل، علی نے وہی کہا کیا ہے جو حق کا حکم ہے۔ یا رسول اللہ ہوا کیا؟ یا رسول اللہ ہوا کیا؟ علی نے قتل کر دیا۔ رسول نے فرمایا خبردار، علی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، علی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس سے گواہ نہیں مانگتے۔ سمجھ گئی میرے دوستوں؟ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگا جاتا۔ رسول نے فرمایا عمل علی، علی نے وہی عمل کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ پتہ چلا یہ ہے عدل، یہ ہے عدل، یہ ہے عدل کہ جس کا کلمہ پڑھو اس کی گواہی، اس سے گواہ نہ مانگو۔ نہیں میں پھر آئیے، میں اگر آپ تھک نہیں گئے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ بھائی تھک تو نہیں گئے میرے سننے والے؟ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس سے گواہیاں نہیں مانگتے۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ ہے سورہ اعراف کی۔ کون سی سورہ؟ سورہ اعراف۔ بھئی اگر میں کوئی اپنی طرف سے کہوں تو آپ کا حق بنتا ہے میرا گریبان پکڑے، لیکن اگر قرآن کہے، یہ بخاری کی روایت نہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ رسول کو خطاب کیا سورہ اعراف میں، اور طاہر بھائی کمال جملہ، اللہ رسول کو فرما رہا ہے وَاتْلُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے میرے رسول اپنی قوم کو قصہ سنا اس بندے کا جس کو ہم نے معجزہ عطا کیا تھا، جس کو ہم نے معجزہ عطا کیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهُ، پھر ہم نے اس سے وہ معجزہ وہ چھین لیا۔ وَلَوْ شِئْتُ، اگر وہ چاہتا تو وہ بلند مقام پر پہنچ سکتا تھا۔ وَلَكِنَّ أَخْلَدَ عَلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود پستی کی طرف گرا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہو۔ اس کی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہو۔ یہ آیت قرآن کی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال طاہر بھائی ایسا ہے جیسے
कुत्ता हो। तो तफसीर में मुफस्सरीन ने लिखा, चाहे गैर शिया मुफस्सरीन ने भी लिखा कि ये बंदा जिसका जिक्र खुदा कर रहा है, ये मूसा की उम्मत का, मूसा की शरीयत का आलिम दीन था। उसका नाम था बलम बाऊर। भाई तवज्जो रखना, मेरी मेहनत जाया ना हो। मेरी मेहनत जाया हो गई तो मुझे बड़ा दुख होगा। तवज्जो रखना, अल्लाह ने रसूल को हुक्म दिया है कि इसको वाकया सुनाओ। अपने रसूल को कहा उम्मत को वाकया सुनाओ। तवज्जो ज़मीर भाई, तवज्जो, बच्चों को बैठने आप तवज्जो करें। इसको वाकया सुनाओ। वाकया सुनाओ किसका? बलम बाऊर का। ये कौन था? मूसा के दीन का बेटा आलिम था। तो इसने किया क्या? अल्लाह ने कहा ना मैंने इसको अपनी निशानियां अता की थी। वो कौन सी निशानियां थी? अल्लाह ने इसको इसमें आजम दिया था, और उस इसमें आजम की बरकत से ये जो दुआ मांगता वो कबूल हो जाती। फिरौन को जब पता चला कि इसकी हर दुआ कबूल हो जाती है, इसने छुपकर रातों रात इसके पास दौलत भेजी। भाई तवज्जो रखना, एड की बड़ी बीमारी है। दौलत भेजी और कहा ये दौलत ले ले, मैंने सुना है तेरी हर दुआ कबूल होती है, ये दौलत ले और जाके मूसा के खिलाफ बददुआ कर। इसने दौलत देखी, लालच में आ गया। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करने के लिए अपने गधे पे सवार हुआ और चलने लगा उस जगह की तरफ जहां जाके ये दुआ किया करता था। ये गधे पे बैठा और चलने लगा। मुफस्सरीन ने लिखा है कि जब इसने गधे को चलाने की कोशिश की, अली की इज्जत की कसम नौजवानों, मेरा ये जुमला जाया हुआ तो मुझे बड़ा दुख होगा। ये जुमला जाया हुआ, मैं कल वापस चला जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं बता रहा हूं, ये जुमला मेरा जाया नहीं करना। ये गधे पे बैठा चलने लगा। इसने जब गधे को चलाने की कोशिश की, गधा एक कदम आगे ना बढ़ा। एक कदम आगे ना बढ़ा। एक कदम गधा आगे ना बढ़ा। एक कदम ना बढ़ा। इसने गधे को मारना शुरू किया। इतना मारा कि गधा मर गया। लेकिन मरने से पहले अल्लाह ने गधे को बोलने की ताकत अता की, और गधा बोल के कहता है तुझे शर्म नहीं आती? जिसका कलमा पढ़ता है उसके मुकाबले में जाता है। अब मैं किधर जाऊं नौजवानों? अब मैं किधर जाऊं? कमर जुमला कहे तो कमर का कसूर नहीं। अब सुनो, मुझे नतीजा देने दो। अब मैं किधर जाऊं? किसी को बुरा लगता है तो लगे, कोई नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन जुमला है कुरान का। सारे पे कुरान रख के बता। अरे मूसा के जमाने के गधे को इतना पता चल गया कि जिसका कलमा पढ़ते हैं उससे लड़ते नहीं, तो जो तलवार लेकर मोहम्मद को मार ले आया, सुनने वाले, अब कोई नाराज होता है तो हो जाए। कुरान असूल देता है। गधे को पता चल गया, आज के बुल्ला को पता नहीं चला। तवज्जो है। और अल्लाह ने क्या कहा? फमसलहु कमसलिल कल्ब। चाहे जितना भी बड़ा आलिम क्यों ना था, अल्लाह ने कहा कुत्ता हो गया। वो अल्लाह की नजर में कुत्ता है। कुत्ता क्यों? कि कलमा नबी का पढ़ के उसकी मुखालिफत करता रहा, तो फिर भी समझ में नहीं आई। अब या अल्लाह, मैं कहता हूं अल्लाह से, या अल्लाह तू रहीम है, थोड़ा सा लिहाज कर दे, थोड़ा सा लिहाज कर दे। ये आलिम है मूसा की शरीयत का, मूसा कलीमुल्लाह उसकी शरीयत का आलिम है, थोड़ा सा लिहाज कर। इतना सख्त लफ्ज, वो भी कुरान में, कि वो कुत्ता बन गया।
اللہ نے کہا قمر میں قانون دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی میری حجت کے مقابلے میں آئے، آدم کے مقابلے میں آیا تھا شیطان، مسلمان بھائی سر پہ قرآن رکھ کے قمر کو جواب تو دے، چاہے تیرا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے۔ اللہ نے کہا جو بھی مجھے مان کر، جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ کر میری حجت کے مقابلے میں آئے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ آدم کے مقابلے میں آیا ابلیس، شیطان بن گیا۔ ابراہیم کے مقابلے میں آیا نمرود، لعنتی بن گیا۔ موسیٰ کے مقابلے میں آیا فرعون، لعنتی بن گیا۔ بھائی گھبرانا نہیں ہے، میرا جملہ سننا۔ اب چلاتے آؤ اسی اصول کو۔ محمد کے مقابلے میں آیا ابو جہل، لعنتی بن گیا۔ اب جہاں پہ محمد کی نبوت ختم، وہاں پہ امامت شروع۔ اب محمد بھی حجت، علی بھی حجت، آدم سے لے کر محمد تک جو ان کے مقابلے میں آئے وہ تو کتا ہے، وہ لعنت اللہ ہے۔ تو اس قانون کو آگے چلا، سر پہ قرآن رکھ کے بتا، محمد کے بعد جو علی سے لڑے وہ تیرے ایمان میں رضی اللہ کیسے بنے؟ سمجھنے کی بات ہے نا، سمجھنے کی بات ہے نا یہ۔ کیوں صرف قانون صرف آدم تک ہے؟ قانون صرف موسیٰ تک ہے؟ قانون صرف محمد تک ہے؟ محمد کے بعد اللہ کی حجتیں ختم ہو گئی؟ نہیں، قانون آگے تک چلے گا۔ مجھے نہیں پتا، میں تاریخ کا طالب علم نہیں کہ کون لڑتا رہا، مجھے نہیں اس بات کا پتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کسی جگہ پر مخالفت کی محمد کی یا مخالفت کی علی کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ عدل ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے عدل کر، عدل کر، عدل کر، جو جس جگہ کے لائق ہے اسے وہاں رکھ۔ یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ میں گھبرا تو نہیں گئے سننے والے، تھک تو نہیں گئے؟ ابھی میں نہیں تھکا، توجہ ہے؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ گھبرانے کی، اور یہ بڑا اہم پیغام میں دے رہا ہوں قرآن کی روح سے کہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میرے نوجوان، میرے سننے والے، میرے بزرگ، میرے محترم، تھکاوٹ محسوس ہوگی تو مجھے بتا دینا، میں چھوڑ دوں گا۔ آئیے دیکھیں یہ 10 دن، ہمارے ان 10 دنوں میں یہ صف ماتم بچھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم حسین اور علی کے حق کی بات کریں، خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں ہم نے دنیا کو بتانا ہی یہ ہے کہ حق علی کیا ہے۔ یہ تھکنا نہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعرضنا الامانات علی السماوات والارض والجبال ابینا ان یحملناہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے، نوجوانوں پوری توجہ، اللہ نے فرمایا میں نے اعرضنا الامانات علی السماوات والارض والجبال۔ اللہ نے کہا میں نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر۔ بڑا مزہ آئے گا اگر یہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہوا۔ اللہ نے فرمایا اعرضنا الامانۃ، میں نے امانت کو پیش کیا کہاں پہ؟ السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمینوں پر، والجبال، اور پہاڑوں پر۔ فآبینا، ان سب نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے۔ سارے مسلمان بھائیوں نے لکھا اس امانت سے 2 مراد ہیں۔ امانت سے مراد دین ہے، یہ لکھا ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہ یہاں پہ امانت سے مراد دین ہے۔ اور طاہر بھائی
ہمارے مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ ایمانت سے مراد ہے علی کی ولایت. لیکن میں کہتا ہوں چلو جمہوریت کا دور ہے, ہم مسلمان بھائیوں کی بات مان لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دین مان لو کہ ایمانت سے مراد ہے دین. اللہ نے کہا میں نے اس ایمانت, دین کی ایمانت کو پیش کیا آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر, لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. پتا چلا یہ اتنی بھاری ایمانت تھی, اتنی قیمتی ایمانت تھی کہ کائنات نے اس کا وزن اٹھانے سے انکار کیا. بھئی توجہ ہے نا میرے سننے والے, گھبرا تو نہیں گئے میرے بچے؟ توجہ رکھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کی اس بڑی ایمانت دین کو زمینوں نے, آسمانوں نے, پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ نے وہ ایمانت دی محمد کو. توجہ چاہ رہا ہوں. اب وہ ایمانت آئی محمد کے پاس. پتہ چلا محمد کے پاس جو بڑی ایمانت ہے وہ ہے اللہ کا دین. مسلمان بھائیوں, میرے جتنے شیعہ نوجوان بیٹھے ہو, علی کی عزت کی قسم سر پہ قرآن رکھواؤ مسلمان بھائیوں کے, اور کل یہ فیصلہ کروا کے آنا. اگر آیت یاد نہ رہے کہ میں نے کون سی پڑھی ہے تو میں ابھی ادھر ہی ہوں, میرے پاس آ جانا, میں پھر بتا دوں گا. پوچھو مسلمان بھائیوں سے کہ اللہ کی یہ ایمانت ہے محمد کے پاس, یہ بڑی ایمانت ہے. پتہ چلا اللہ کی بڑی ایمانت ہے محمد کے پاس. محمد کے پاس کون محمد؟ کہ شب ہجرت میں جانے سے پہلے محمد نے فرمایا یا علی یہ کچھ کافروں کی ایمانتیں بھی ہیں, یہ کل واپس دینا پھر آنا. اب میں کہنا کیا جا رہا ہوں, وہ محمد. نوجوانوں سر پہ قرآن رکھو, تم بھی رکھو, مسلمان بھائیوں سے بھی رکھواؤ. محمد نے جانے سے پہلے کسی کو مقرر ہی نہیں کیا تھا. محمد نے دنیا سے جانے سے پہلے دین کو امت کے حوالے کر دیا تھا. امت پہ فیصلہ. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے محمد وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی بڑی ایمانت دین حوالے کیا محمد کے. اور محمد کون کہ جانے سے پہلے کافروں کی ایمانتوں کی بھی اتنی فکر کرتا ہے کہ علی کو کہتا ہے یا علی جانے سے پہلے یہ ایمانتیں واپس کر کے آنا. کس کی؟ کافروں کی. کافروں کی. پھر سنو, پتا چلا محمد وہ ہے جو کافروں کی ایمانت کو بھی بے وارث نہیں چھوڑتا. تو اس محمد کے پاس اللہ کی بڑی ایمانت دین تھا جو محمد کافروں کی ایمانت کو وارث کے بغیر نہیں چھوڑتا. سر پہ قرآن رکھ کے بتا, وہ محمد اللہ کی ایمانت کو بغیر علی کے حوالے کیے کیسے چلا گیا؟ دیکھو میرے نوجوانوں, میرے بچوں, یہ ہیں جملے, یہ ہے تبلیغ, یہ ہے باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. ارے جس محمد کو کافروں کی ایمانتوں کی اتنی فکر ہے کہ وہ اس وقت تک جاتا نہیں جب تک کافروں کی ایمانت کا وارث نہ بنائے. تو اس محمد کے پاس سب سے بڑی ایمانت ہے اللہ کی دین. تو وہ جانے سے پہلے دین کو بے وارث چھوڑ گیا نہیں. آئیے دیکھیں, یہ تو قرآن نے بھی کہا کہ جناب موسیٰ کو جب اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو کوہ طور پہ 30 یا 40 راتوں کے لیے آنا پڑے گا. نوجوانوں سمجھتے ہیں اس بات کو؟ پتہ ہے نا اس بات کا کہ جناب موسیٰ کو توریت لینے کے لیے 40 دنوں کے لیے اللہ نے کوہ طور پہ بلایا. تو جناب موسیٰ جب 40 دنوں کے لیے, کتنے دنوں کے لیے؟ 40 دنوں کے لیے. نوجوانوں بچوں کتنے دنوں کے لیے؟ 40 دنوں کے لیے جب کوہ طور پہ گئے تو کیا کہا؟ یہ الفاظ ہے قرآن کے. جناب موسیٰ نے کہا یا قال موسیٰ لے اہی ہارون نخلفنی. اے موسیٰ نے کہا اے میرے بھائی ہارون,
اے میرے بھائی ہارون، میں جا رہا ہوں 40 دنوں کے لیے، میرے بعد میری امت میں میرا خلیفہ بن کے رہنا۔ بیٹا سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اے بھائی ہارون، میں جا رہا ہوں 40 دنوں کے لیے، میں اخلفنی فی امتی، میرے بعد میری امت میں میرا خلیفہ بن کے رہنا، میرا خلیفہ بن کے رہنا، وَأَصْلِحْ، اور وہی کرتا رہنا جو میں کرتا رہا ہوں، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کی بیعت نہ کرنا۔ اب میرا سوال ہے کہ وہ موسیٰ جس کو پتا ہے کہ وہ صرف 40 دنوں کے لیے جا رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ وہ واپس آئے گا، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ وہ آخری نبی بھی نہیں، اس کے بعد ایک اور نبی ہارون بھی آئے گا، تو پھر بھی 40 راتوں کے لیے جائے تو پھر بھی اپنے دین کو، اپنی امت کو بغیر وارث کے چھوڑ کے نہیں جاتا، تو سر پہ قرآن رکھ کے بتا، وہ محمد جسے پتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور اس کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، تو وہ محمد اللہ کی بڑی امانت کو بے وارث کر کے چلا گیا، پھر عدل کدھر گیا؟ تو پھر عدل کدھر گیا؟ یہ عدل نہیں، تو یا پھر ماننا پڑے گا کہ محمد جانے سے پہلے کسی کو مقرر کر کے گیا تھا۔ نہیں، اب یہاں سے میں کل پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دو جہاں پہ میں آج کی گفتگو ختم کر سکوں۔ بھئی تھک تو نہیں گئے میرے سننے والے؟ مجھے ضمیر بھائی نے کل پرسوں کہا تھا کہ پروفیسر صاحب آپ نے اس پروگرام کے بعد کہیں جانا نہیں ہوتا، ادھر ہی ہوتے ہیں، تو ٹائم آپ کے پاس بھی بڑا ہے تو ہمارے پاس بھی بڑا ہے۔ تو میں نے کہا فکر نہ کریں، جب تک سامعین سنیں گے میں پڑھوں گا، لیکن مجھے پتہ ہے گرمی کا موسم ہے، مجھے 2 آیتوں کی اجازت دی اور نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ 2 آیتوں کی اجازت دیں تاکہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ گھبرا تو نہیں کہ میرے سننے والے؟ توجہ ہے، مجھے جملہ کہنے دیں۔ اللہ نے امانت کی سپرد محمد نے کافروں کی امانت سپرد کی علی کے۔ اب نوجوانوں ہم ناز کیوں نہ کریں علی کے امام ہونے پر؟ ارے اللہ کی نظر میں محمد امین، محمد کی نظر میں علی امین، محمد کی نظر میں علی امین۔ اب دیکھیں کافروں نے کہا کہ یہ رسول جا رہا ہے مسلمانوں کا، اگر یہ چلا گیا تو دین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ جانا نہیں چاہیے۔ اب یہ الفاظ ہے قرآن کے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی واقعہ کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، وَإِذْ يَمْكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا، انہوں نے جب کافروں نے مکر کیا، تدبیر کی، کیا؟ لِيُثَبِّتُوا، کہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، او یخرجوکا، یا آپ کو کسی طرح سے یہاں سے نکالیں۔ تو اللہ نے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ پتہ چلا اللہ نے اپنے محمد کو بچانے کے لیے تدبیر کی۔ بس آخری جملہ میری آج کی گفتگو کا، اللہ نے اپنے نبی کو بچانے کے لیے تدبیر کی۔ تو مسلمان ذرا سر پہ قرآن تو رکھ، مجھے بتا اللہ نے کیا تدبیر کی؟ کیا تدبیر کی؟ ارے اللہ نے تدبیر کیا کی؟ جب عیسیٰ کو خطرہ ہوا تو اللہ نے عیسیٰ کو تو چوتھے آسمان پہ اٹھا دیا، تو یہ تو محمد اس کا محبوب ہے۔ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میرے بچے، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ارے عیسیٰ کو جب جان کا خطرہ ہوا تو اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا عیسیٰ کو بچانے کے لیے۔ تو طاہر بھائی یہ محمد، یہ تو اللہ کا محبوب ہے، تو
तो मुसलमान भाइयों से कल पूछे हैं जरा, अल्लाह ने मोहम्मद को कह रहे, अल्लाह कह रहे काफिरों ने तदबीर की, मैंने भी तदबीर की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो अल्लाह ने तदबीर क्या की? मुसलमान तुझे मानना पड़ेगा, अल्लाह ने मोहम्मद को तदबीर ये की बचाने के लिए कि कहा मोहम्मद को, मोहम्मद अली को सुला अपने बिस्तर पर, अली को सुला बिस्तर पर। नौजवानों जुमला मेरा जाया न करना, मोहम्मद अली को सुला बिस्तर पर। अब मोहम्मद ने कहा या अली, अगर आज की रात आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं तो मेरी जान बच जाएगी। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, तलवारों के साए में आपके बिस्तर पर सोने से आपकी जान बच जाएगी? हाँ या अली, बच जाएगी। अली सो गया, ना सोने वाला सो गया, ना सोने वाला सो गया, मोहम्मद की जान बच गई। अब मैं जुमला कहने का हक रखता हूं, अरे जिस अली के सोने की कीमत है मोहम्मद की जिंदगी, सर पे कुरान रख के बताओ उस अली की जिंदगी की कीमत क्या होगी? मोहम्मद की बिस्तर पे सोए, मोहम्मद के बिस्तर पे अली सोए, सरकार चले गए। अब सरकार चले गए, अली है मोहम्मद के बिस्तर पर। उस जमाने में दीवारें होती थी छोटी छोटी, ये सारे काफिर इकट्ठे होकर रसूल के घर का घेरा डाल के खड़े रहे, दीवारों से देखते रहे। सोया हुआ था अली, ये सारी रात अली को मोहम्मद समझते रहे। देखो मेरा जुमला खा गए, फिर खा, देखो फिर उड़ गया मेरा जुमला। ये काफिर देखते रहे और सारी रात अली को मोहम्मद समझते रहे। नौजवानों को अली की दुश्मनी में आके इस्लाम के मुर्रिखीन ने लिखा अली का कद छोटा था, अली का कद छोटा था। तो तू बता, ये काफिर अंधे हो गए थे जो सारी रात अली को मोहम्मद समझते रहे? मेरा अली जहां भी है उसको अल्लाह ने वहां रखा है, और हर चीज को रख उस जगह पे जिस जगह पे रखने के लायक है। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि इमानतों को वापस करो उनकी तरफ जो इमानतों के वारिस हैं, और जब तुम लोगों में फैसला करो तो अदल के साथ करो। अफसोस इस बात का है कि अगर उम्मत अदल करती तो अली की बेटियों को दरबारों और बाजारों में चादरें मांगना न पड़ती। ज़ियारत लाहिया में मेरा मौला, मेरा 12वां इमाम इरशाद फरमाता है, दादा हुसैन मैं सुबह और शाम खून के आंसू बहाता हूं। दादा हुसैन मैं सुबह और शाम आपके लिए खून के आंसू बहाता हूं। अज़लारो, हमारे एक मुज्तहिद गुजरे हैं, उन्होंने एक मखसूस अमल किया 40 दिनों तक। जब वो अमल मुकम्मल हुआ ना तो मौला इमाम ज़माना की ज़ियारत हुई है। कदमों पे गिरे, कदमों पे गिर के हमारे आलिम ने सवाल किया, मौला क्या ये आपने कहा है कि ए हुसैन दादा मैं आपके गम में सुबह शाम खून के आंसू रोता हूँ? मेरे मौला ने फरमाया, हाँ ए मोमिन मैंने ये कहा है, ये मेरे ही लफ्ज हैं। मोमिन ने रो के कहा, मौला तो क्या आप इसीलिए खून रोते हैं कि आपके दादा हुसैन 3 दिन के प्यास में कत्ल कर दिए गए? मेरे मौला के एकदम मेरे मौला ने दोबारा खून रोना शुरू किया। इमाम फरमाते हैं, मोमिन अगर मेरा दादा हुसैन जिंदा होता तो वो भी खून के आंसू रोता। अल्लाह मोमिन ने कहा, मौला तो फिर क्या आप इसीलिए खून के आंसू रोते हैं कि अली अकबर घोड़े की जीन से उतर गया? मेरे मौला ने कहा, इमाम ज़माना ने कहा, मोमिन अगर अली अकबर जिंदा होते तो वो भी इसी तरह खून के आंसू रोते। अज़ादारों, मोमिन ने कहा, मौला तो फिर इसलिए खून रोते हो कि अब्बास चचा के बाजू कलम हो गए? मेरे मौला ने कहा, अगर अब्बास जिंदा होते तो वो भी खून के आंसू रोते। अब जो रोना चाहते हो मेरा जुमला सुनना, ताकि हम
हमारी इबादत कबूल हो जाए तो आंसू आ जाए। अज़ादारों, जब ये कहना था, इसने हाथ बांध के कहा, मौला फिर इतना तो बताओ, आप खून के आंसू रोते क्यों हो? मेरे इमाम ने रो के फरमाया, मोमिन हम इसलिए रोते हैं कि दादी ज़ैनब हमारी वो दादी जो अली जैसे बाबे के सामने सहन के अंदर ना चलती थी, अल्लाह जाने बाजारे शाम में बगैर चादर के कैसे पत्थर खाती रही। अज़ादारों, इमाम ने रो के कहा, हम रोते हैं दादी ज़ैनब की चादर को। अज़ादारों, जब हुसैन हुए ना 2 बरस के, जब हुसैन हुए ना 2 बरस के, तो सहाबा में रसूल ने ऐलान किया, मेरे सहाबा कल इस वक्त आ जाना, मेरा हुसैन घोड़े पे सवार होगा। अज़ादारों, सारे सहाबी इकट्ठे हुए, आए हुसैन की पहली सवारी देखने के लिए। अज़ादारों, जब हुसैन आए, घोड़े को लाया गया, घोड़ा पेट के बल हुसैन के सामने जमीन पे लेट गया। अज़ादारों, हुसैन घोड़े पे बैठे, घोड़ा उठा, घोड़े ने चलना शुरू किया। इधर जनाब सैयदा को जब पता चला ना, आज मेरा हुसैन पहली बार घोड़े पे सवार हुआ है, अज़ादारों, जनाब सैयदा ने कहा, मेरे बाबा को बोलो हुसैन की सवारी को मेरे सहन में लेके आए। अज़ादारों, जनाब सैयदा का पैगाम मिलना था, हुसैन के घोड़े को मोहम्मद लेकर जनाब सैयदा के सहन में आए। अज़ादारों, जनाब सैयदा ने कहा, हुसैन एक दफा फिर सवार हो के जरा माँ को तो दिखा। अज़ादारों, हुसैन के सामने घोड़ा फिर जमीन पे लेटा। हुसैन जब सवार हुआ ना, जनाब ज़हरा ने अपने सर से चादर उतारी, अंदर से जाके अपनी चादर में दाना डाल के बीबी आई। बीबी ने दाना अपनी चादर में घोड़े को खिलाना शुरू किया। साथ घोड़े के कान में कहा कि घोड़ा याद रखना, ये वो चादर है जिसमें नबी नहीं आ सकते। मैं इस घोड़े में, तो इस चादर में तुम्हें दाना खिला रही हूँ, याद रखना। इसके बदले में मैं कहती ये हूँ, 10 मुहर्रम के दिन जब मेरे हुसैन का कोई ना रहे, तो मेरे हुसैन को आहिस्ता उतारना, कहीं ऐसा ना हो मेरे हुसैन को जख्म लग जाए। अज़ादारों, जनाब उम्मे सलमा कहती है, एक दिन रसूल ने फरमाया, उम्मे सलमा आज मैं किसी सहाबी से नहीं मिलूंगा, आज मैं अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर रहा हूँ, आज कोई मिलने आए तो कह देना रसूल ने कहा है आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। अज़ादारों, रसूल ने दरवाजा बंद किया, अपने हुजरे में गए। थोड़ी देर गुजरी तो हुसैन तशरीफ लाए। बचपन का आलिम था, कहते हैं नानी उम्मे सलमा मेरा नाना किधर है? जनाब उम्मे सलमा कहती है, मैंने कहा हुसैन है तो अंदर, लेकिन आज मना किया है कि आज किसी से नहीं मिलेंगे। जब कहा ना उम्मे सलमा ने कि आज तेरे नाना ने मना किया है आज किसी से नहीं मिलेंगे, चुप करके हुसैन पीछे मुड़े। हुसैन ने दरवाजे की तरफ बाहर जाना शुरू किया, इधर बाहर जाना शुरू किया, एकदम रसूल के हुजरे का दरवाजा खुला। रसूल के बाजू बाल बिखरे हुए थे। रोते हुए रसूल ने कहा, उम्मे सलमा तूने कयामत बर्पा कर दी। मैंने हुसैन के लिए तो मना नहीं किया था, मैंने हुसैन के लिए तो नहीं रोका था। जाओ मेरे हुसैन को लेके आओ, जाओ मेरे हुसैन को लेके आओ। अज़ादारों, उम्मे सलमा कहती है, मैं पीछे हुसैन के गई, हुसैन से कहा हुसैन नाना बुला रहे हैं। अज़ादारों, हुसैन कहते हैं, नानी मैं इनकार तो नहीं करता, लेकिन नाना से कहो नाना ये मदीना है, ये करबला नहीं है, ये मदीना है, ये करबला नहीं है, मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। अज़ादारों, हुसैन का पैगाम नाना को मिला। रसूल दौड़ते हुए आए, हुसैन को उठाया, उठा के अपने हुजरे में लेके दरवाजा बंद किया। थोड़ी देर गुजरी ना, उम्मे सलमा कहती है, मुझे रसूल के रोने की आवाज आई। अज़ादारों, उम्मे सलमा ने दरवाजा खोला, कयामत का मंजर नजर आया। रसूल हुसैन को चूम रहे थे, रो रहे थे, हुसैन के जिस्म को चूम रहे थे। अज़ादारों, उम्मे सलमा कहती है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज हुसैन के जिस्म को बोसे क्यों दे रहे हो? अज़ादारों, रसूल ने कहा, उम्मे सलमा मैं हुसैन के जिस्म की वो जगह चूम रहा हूँ जहाँ कहीं तीर का जख्म लगेगा, कहीं नेज़े का जख्म लगेगा। अज़ादारों, जिस घोड़े को ज़हरा अपनी चादर में दाना खिला के ये हवाले करती रही, मेरे हुसैन को आहिस्ता उतारना। 10 मुहर्रम के दिन
भागते हुए घोड़े से वही हुसैन जख्मी हालत में मुंह के बल जमीन पे गिरा, मुंह के बल जमीन पे गिरा। घोड़ा भागता हुआ वापस आया, कहते हैं हुसैन मैं माफी चाहता हूँ, अगर मेरी गलती से उतरा है तो मैं माफी चाहता हूँ, अगर अपनी मर्जी से उतरा है तो मुझे पता है तू बड़ा जख्मी है, मैं जमीन पे लेटता हूँ, चाहे मुश्किल से ही क्यों ना हो, एक दफा मेरी जीन पे चढ़ा, मैं तुम्हें नाने की कब्र पे पहुंचा देता हूँ, मैं तुझे नाने की कब्र तक ले जाता हूँ ताकि उम्मत के जुल्म से बच जाए। अला लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, मातमे हुसैन।